Hello everyone, welcome to Legal Update, and today's topic for discussion is, can spouse sue for alienation of affection? Why news? Recently, the Delhi High Court in X versus Y and another has ruled that a spouse can file a civil suit for damages against their partner's lover for interfering with the marriage. Background of the case: the wife filed a civil suit seeking damages from her husband's lover for causing the breakdown of her marriage. The wife claimed the lover intentionally interfered with her marital relationship, leading to the breakdown and her husband's open affair, filed for divorce, adding a further complication to the marital dispute. The defendants objected, claiming that the matter should be dealt with the family court. Citing Section 7 of the Family Courts Act, the Delhi High Court overruled the objection, allowing the civil suit for damages based on tortious interference. What were the court observations? Justice Pushpendra Kumar Kaurav discussed the legal concept of alienation of affection, which is derived from Anglo-American common law. He noted that while Indian jurisprudence has not yet formally recognized this tort, the suit remains maintainable. The court clarified that the civil suit was maintainable in civil court despite the ongoing matrimonial dispute. It emphasized that the relief sought in this suit, which is compensation for wrongful interference, was distinct from remedies pursued under matrimonial law. The court emphasized that the defendant must engage in intentional and wrongful conduct to alienate the spouse's affection. The wife had to prove this conduct caused legal injury and that the damage suffered could be quantified. Provision involved is Section 7 Clause 1 Clause D of the Family Courts Act 1984, which grants a family court jurisdiction over a suit or proceeding for an order or injunction in circumstances arising out of a marital relationship. This means the court can issue orders or injunctions such as restraining orders for situations that directly stem from a marriage. Case laws involved are: first, Pinakin Mahipatre Rawal vs. State of Gujarat 2013, where the Delhi High Court held that although a third party may cause marital breakdown by interfering in a relationship, pursuing damage is rare. Even if pursued, monetary damages may not restore the marriage but only compensate for harm suffered. Second, Joseph Shrine vs. Union of India in 2018, the case decriminalized adultery. The court clarified that it does not grant immunity from civil consequences. Personal liberty remains unaffected, but such conduct may still lead to civil actions for marital interference. It's the time for practice question. What is the tort of alienation of affection? Option A, interference with the personal property of a spouse. Option B, interference with a spouse's right to financial benefits. Option C, interference with the marital relationship by a third party. And option D, none of the above. Pin down your answers in the comment section below. क्या जीवन साथी एलिनेशन ऑफ अफेक्शन के लिए मुकदमा कर सकता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्स बनाम वाई और अन्य मामले में फैसला सुनाया कि पति या पत्नी अपने साथी के प्रेमी के खिलाफ विवाह में हस्तक्षेप करने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। चलिए इस मामले की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका से उसकी शादी टूटने के लिए हर्जाना मांगते हुए एक सिविल मुकदमा दायर किया। पत्नी ने दावा किया कि प्रेमिका ने जानबूझकर उसके वैवाहिक रिश्ते में दखल दिया, जिससे रिश्ता टूट गया और उसके पति का खुलेआम अफेयर शुरू हो गया। तलाक के लिए अर्जी दी, जिससे वैवाहिक विवाद और उलझ गया। प्रतिवादियों यानी पति और प्रेमिका ने आपत्ति जताते हुए परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए दावा किया कि इस मामले को परिवार न्यायालय में निपटाया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपत्ति को खारिज कर दिया तथा अब कृत्य हस्तक्षेप के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति दे दी। चलिए अब जानते हैं इस मामले में न्यायालय की क्या टिप्पणियां रही। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एलिनेशन ऑफ अफेक्शन की कानूनी अवधारणा पर चर्चा की, जो एंग्लो अमेरिकन कॉमन लॉ से ली गई है। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारतीय न्यायशास्त्र ने अभी तक इस अपकृत्य को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, फिर भी यह मुकदमा विचारणीय बना हुआ है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवाद जारी रहने के बावजूद यह दीवानी मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचारणीय है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुकदमे में मांगी गई राहत, गलत हस्तक्षेप के लिए मुआवजा वैवाहिक कानून के तहत दिए जाने वाले उपायों से अलग है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी यानी प्रेमिका को जीवन साथी के स्नेह को भंग करने के लिए जानबूझकर और गलत आचरण करना होगा। पत्नी को यह साबित करना होगा कि इस आचरण से कानूनी क्षति हुई है और हुए नुकसान का आकलन किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस मामले में शामिल प्रावधानों के बारे में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7(1)(d। भारत के पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7(1)(d वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी मुकदमे या आदेश या निषेधाज्ञा के लिए कार्रवाई पर पारिवारिक न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि न्यायालय उन स्थितियों के लिए आदेश या निषेधाज्ञा जैसे निरोधक आदेश जारी कर सकता है जो सीधे विवाह से उत्पन्न होती है। चलिए अब जानते हैं इस मामले से संबंधित केसेस के बारे में। पिनाकिन महिपात्र रावल बनाम गुजरात राज्य 2013। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि कोई तीसरा पक्ष किसी रिश्ते में दखल देकर वैवाहिक संबंध तोड़ने का कारण बन सकता है, लेकिन हर्जाने की मांग करना दुर्लभ है। अगर मांग भी की जाए तो आर्थिक हर्जाना विवाह को बहाल नहीं कर सकता, बल्कि केवल हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में व्यभिचार को अपराध से मुक्त कर दिया गया, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह दीवानी परिणामों से छूट प्रदान नहीं करता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अप्रभावित रहती है, लेकिन ऐसा आचरण वैवाहिक हस्तक्षेप के लिए दीवानी कार्रवाई का कारण बन सकता है। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। एलिनेशन ऑफ अफेक्शन का अपकृत्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, जीवन साथी की निजी संपत्ति में हस्तक्षेप। ऑप्शन बी, जीवन साथी के वित्तीय लाभ के अधिकार में हस्तक्षेप। ऑप्शन सी, किसी तीसरे पक्ष द्वारा वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।